السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کلو عثمان کی 93 ایپیسوڈ کے پارٹ 1 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل پر نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکولا ایناگول میں آتا ہے، سپاہی پوچھتا ہے کیا حکم ہے؟ نیکولا کہتا ہے حکم واضح ہے، ترک اپنی تمام طاقت اکٹھی کر کے لائے ہیں، یہ قلعہ میرا ہے اور کسی کو اور کا نہیں ہو سکتا، دروازے بند کر دو۔ عثمان کہتا ہے میرے سپاہیوں، میرے سرداروں، اس عالم میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، راناگول کی فتح کا وقت آ چکا ہے، متحد ہو کر ایک چنار کی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ میرے سرداروں، میرے سپاہیوں، ہم ایناگول حاصل کریں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے، اب جہاد کا وقت ہے۔ عثمان اور تمام سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں جس کی آوازیں ایناگول قلعے میں جاتی ہیں۔ نیکولا قلعے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے چیختے رہو میں تمہاری گردنوں کو سلیب پر لٹکاؤں گا۔ رومانوس کہتا ہے لیکن پہلے عثمان، اس کو ہرانا ضروری ہے۔ نیکولا سپاہیوں سے کہتا ہے کیا آپ سن رہے ہیں؟ یہ ترکوں کی آواز ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ جانتے ہو؟ میرا قلعہ، میرا شہر، وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ نیکولا اپنی چھری نکالتا ہے اور اپنا ہاتھ کاٹتا ہے اور کہتا ہے یہ خون پہلی مرتبہ نہیں بہا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بہا ہے اور نہ ہی آخری بار بہا ہے۔ باہر ہیں وہ لوگ، ان کی آنکھیں ہمارے قلعے پر ہیں، تو پھر وہ لوگ جو تیر پھینکیں گے وہ نہ صرف ان کی آنکھیں بلکہ وہ ان کے بچوں اور عورتوں کے کلیجے بھی نکالیں گے۔ ان کی فوج چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، ان کا اسلحہ چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، ہم ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارا ایک ہی سپاہی ان کے 1000 سپاہیوں کے برابر ہے، ہمارا ایک سپاہی ان کے 1000 سپاہی گرا سکتا ہے۔ سپاہی نعرہ لگاتے ہیں ہمارا ایک ان کے 1000۔ نیکولا کہتا ہے بازنطین کے بہادر سپاہیوں، یہ جنگ بہت مشکل ہوگی لیکن ہم بھاگیں گے نہیں، ہم ہمت سے لڑیں گے اور ہار کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ہماری گردن پر تیر چلیں گے اور ہمارے دلوں میں خنجر گھپیں گے، لیکن ماں باپ آپ جیسے بہادر سپاہیوں کے واقعات نام لے کر سنائیں گے، اور میں نیکولا قسم کھاتا ہوں اپنے شہر اور اپنے لوگوں کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ روم ترکوں سے بڑا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، آج ترکوں کا نام اس زمین سے مٹایا جائے گا۔ رومانوس نعرہ لگاتا ہے عظیم ترک زندہ باد۔ عثمان کہتا ہے ہم قلعے کے کمزور حصوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب تک ہم ان میں سے راستے نہیں بناتے ان پر گولے برساتے رہیں گے۔ عثمان کہتا ہے پیچھے جو منجیقیں ہیں وہ وار کرنا جاری رکھیں گے، لیکن جس وقت ہم اندر داخل ہوں گے اس وقت تمام منجیقیں ہٹا دیں گے۔ عثمان کہتا ہے تو چلو پھر شروع کرتے ہیں۔ وہ توران سے بولتا ہے کہ بارود لے آؤ۔ عثمان جیسے ہی شروع کرتا ہے پیچھے سے جرکوتائے کی آواز آتی ہے، سردار رک جائیں، راستہ دیں مجھے، لوگوں سے کہتا ہے۔ جرکوتائے کہتا ہے سردار اس میں سب سے زیادہ محنت آکچا کی ہے، میری گود میں ہی شہادت پائی، یہ دن نہیں دیکھ سکا، لیکن ایک وصیت دی ہے کہ اگر میں یہ فتح نہیں دیکھ سکا تو میری تلوار پہلے گولے کے ساتھ اسے بھی ساتھ پھینکنا۔ عثمان کہتا ہے ایک بہادر کا جسم خاک ہو جاتا ہے لیکن کا نام ہمیشہ روشن رہتا ہے، وہ خنجر کو بارود سے باندھتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے یا اللہ، یہ آکچا چرواہے کے لیے، اس کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا، اور وہ بارود جا کر قلعے کی دیوار کو توڑتا ہے۔ تمام سپاہی خوش ہو کر اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ گندوز، ترگس، برہان سب اللہ اکبر کہتے ہوئے، حق اللہ کہتے ہوئے قلعے پر گولے برساتے ہیں۔ پادری کہتا ہے خداوند مجھے اس عذاب سے بچا، ترکوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈال دیا ہے۔ نیکولا کہتا ہے اپنے جہنم میں خوش آمدید عثمان۔ عثمان بالکل وقت ضائع نہیں کر رہا، یہ حالت دیکھو تم۔ نیکولا کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں رومانوس، عثمان صرف اپنے لیے آگ جلا رہا ہے، ذرا یہ ختم ہونے دو تم، میں انہیں ایسا جلاؤں گا کہ وہاں صرف جلی ہوئی لاشیں ملیں گی۔ قبیلے میں علاء الدین کمرال ابدال سے کہتا ہے اگر اماں ابا اجازت دے دے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے۔ فرحان کہتا ہے کم از کم زخمی سپاہیوں کی مدد تو کر سکتے، یہاں رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ کمرال ابدال کہتے ہیں میرے بہادر سپاہیوں، اب ہماری باری ہے، ہمارے بعد آپ لوگ ہی لڑیں گے، ابھی تھوڑا صبر کریں۔ سامنے سے بالا آئگل اور خواتین کو آتے ہوئے کمرال ابدال دیکھ کر کہتے ہیں جب سے بالا خاتون خواتین کی سربراہ بنی ہے، جب سے خواتین کے تیر خطا نہیں ہوتے۔ ضمیر جی کہتے ہیں کیونکہ اس کی تربیت حیدر علی کے گھر میں ہوئی ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں اور جب آئگل خاتون جیسی جنگجو عورت بھی اس کے ساتھ ہو۔ بالا کہتی ہے اب کے بعد آئگل کا کام خواتین کا ہے اور یہ اس کی اہل بھی ہے، اللہ آپ کو طاقت بخشے۔ آئگل کہتی ہے امانت سپاہیوں تک پہنچا دوں گی۔ مالون کہتی ہے ہولوفرا بھی کل روانہ ہوں گی۔ ہولوفرا کہتی ہے آپ لوگوں نے میری حفاظت، میں شکر گزار ہوں، اتنے میں قبیلے کا ڈف بجتا ہے۔ بالا کہتی ہے خیر ہو۔ ہولوفرا اپنا لاکٹ ہاتھ میں لے کے گھما رہی ہوتی ہے، اورہان اسے دیکھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے یہ میری ماں کا لاکٹ ہے۔ قبیلے میں مالون کی بیٹی فاطمہ آتی ہے، مالون اسے پیار کرتی ہے اور کہتی ہے یہاں کیا کر رہی ہو، سب خیر ہے؟ فاطمہ کو چھوڑنے آئی ہوئی خاتون بتاتی ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، آپ نے آنے میں دیر کی اسی لیے میں لے کر آ گئی۔ بالا فاطمہ کو خوش آمدید کہتی ہے، اسحاق کے بھیجے ہوئے
हुए सिपाही मौका पाते ही किचन में घुसते हैं। तमाम खाने पर जहर डालते हुए एक सिपाही कहता है कि इसके बाद तुम दर्दनाक मौत मरोगे। सिपाही कहता है जल्दी करो। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। मालून किचन में आती है और कहती है मैं बहुत परेशान थी, अब मुझे सुकून मिला। सलवा कहती है जानती हूँ बहन, बेटी की हसरत जो थी, शुक्र है अल्लाह का उस्मान भाई और बारकन भी जल्द कबीले पहुँच जाएं। मालून कहती है जल्द वापस आएंगे, तुम परेशान ना हो। मालून कहती है इतने कम वक्त में इतना अच्छा काम किया है अलाजा। वो सिपाहियों को खाना घोड़ा गाड़ी पे ले जाने का कहती है। मालून कहती है तुलू के वक्त इंशाल्लाह इसे ले जाएंगे। चर्च में चीखों की आवाज आती है। पादरी कहते हैं मैंने कहा था ना जंग कोई नहीं जीतता, देखो हम हार रहे हैं। इस जंग को शुरू करना सबसे बड़ी गलती थी और इसे शुरू करने वाला निकोला है और आप सबकी मर्जी जाने बगैर हमें आग के अंदर धकेल दिया। लोग कहते हैं निकोला हमारे लिए लड़ रहा है, आप तुर्कों की हिमायत कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? पादरी कहता है मैं हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन ये जंग निकोला ने शुरू करी है और ये देखें अंजाम, हमारी क्या हालत हो गई। अगर हमारे पास दुश्मन से लड़ने की ताकत नहीं तो अपने बाजू लड़ने के लिए नहीं बल्कि गले लगाने के लिए खोलने चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम तुर्कों के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे तो वो भी मजबूत रवैया रखते हैं, क्योंकि ये जंग निकोला ने शुरू की है तो वो खुद इसका सामना करे। शिकस्त जानते हुए भी हम जंग में शामिल नहीं होंगे, अगर होंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी। तैमूर आके कहता है कि अगर उस्मान किला फतह करता है निकोला को मारने के बाद आपको मारेंगे। पादरी कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इनके मुकद्दस लोगों पर हमला नहीं करते जब तक वो मासूम हो। मैं आपको उनसे बेहतर जानता हूँ। तैमूर कहता है इसीलिए आप निकोला के खिलाफ बोल रहे हैं, सिपाही आपको सुन रहे हैं, अपने लिए मसला खड़ा कर लोगे। राइब निकोला के हुक्म से आपको कैद किया जा सकता है। लोगों के शोर मचाने पर तैमूर कहता है बस करो, अगर बगावत की तो यहाँ पर कैद खाने खाली हैं। तैमूर सिपाहियों से कहता है बांध दो इसके हाथ, और वो वहाँ से चला जाता है। हैदर अली तमाम सिपाहियों को नमाज पढ़ाते हैं। हैदर अली कहते हैं अल्लाह जो करीम और अजीम जात है, ये लश्कर सिर्फ आपके आगे घुटने टेकती है, ना तो मौत से डरते हैं और ना ही जख्म खाने से डरते हैं। ये लश्कर जिसे पैगम्बर ने गाजी कहा, जिनकी नस्ल बहादुर है, ए अल्लाह इस लश्कर को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बना दे, ताकि काफिर लोग कभी भी मुसलमानों पर गालिब ना आ सकें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बना दे ताकि ये दुनिया में आपका नाम मुबारक फैला सकें। या गालिब इस लश्कर को कामयाबी अता फरमा और हमारी कामयाबियाँ दायम रहें। सब कहते हैं आमीन, और आमीन कह के हैदर अली अल फातिहा कहते हैं। आना गुल किला में सिपाही पादरी को मारता है और कहता है हर चीज का जिम्मेदार निकोला को करार दे दिया। पादरी कहता है इस शहर को सबसे ज्यादा निकोला ने नुकसान पहुंचाया। तुर्कों पर वार नहीं करो तो वो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन निकोला वो जालिम है, आप लोगों की परवाह नहीं है इसे। सिपाही कहता है तुम्हें अपनी बातों पर पछतावा होगा राहिब। राहिब कहता है वो मुझे मारेगा और क्या होगा, या मुझ पे जुल्म करेगा और क्या होगा। सिपाही जैसे ही उसे दोबारा कोड़ा मारने लगता है तैमूर आके उसको रोकता है। तैमूर सिपाही से कहता है इस राहिब को मैं देखता हूँ। तैमूर कहता है कि आपकी ये जबान निकोला को बिल्कुल पसंद है, मुझे डर है कि तुम्हें मौत तक ले जाएगा। राहिब कहता है कि मुझे निकोला से कोई डर नहीं, इसने जंग शुरू करके पूरा शहर तबाह कर दिया है। गोल किला में निकोला की हुकूमत से बेहतर है कि हम उस्मान की गुलामी करें। तैमूर राहिब से कहता है कि मैं उस्मान और उसके बाबा की रहमदिली से वाकिफ हूँ। तैमूर सिपाहियों से जाने को कहता है। सिपाहियों के जाने के बाद वो कोड़ा जमीन पे मारता है और कहता है इस राहिब को राह रास्त पे लाना मुश्किल है, निकल जाएं आप लोग, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो खामोश रहो राहिब। राहिब कहता है ये कैसे मुमकिन है। तैमूर कहता है वरना यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे, खामोश रहो और इंतजार करो। गोल किले में रात के वक्त रोमानोस कहता है कि उस्मान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है और अगर इसी तरह जारी रहा तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा निकोला। सिपाही बाहर मेरे हुक्म के मुंतजिर हैं और मैं यहाँ कैद हो चुका हूँ। निकोला कहता है इन सिपाहियों को देख रहे हो रोमानोस, हर कोई अपने काम में अहल है और बेहतर है, ये हमारी जानें बचाएंगे, फिक्र ना करो। उस्मान चरवाहे अपनी पैदाइश पर अफसोस करेंगे। रोमानोस कहता है हकीकत की आंखें खोलो निकोला, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, असला है और गोले बरस रहे हैं, बाहर आपकी मौत के लिए तरसने वाला लश्कर है। निकोला कहता है तुम्हारे सिपाही मजबूत हैं, लेकिन उस्मान को कमजोर नहीं समझना। रोमानोस कहता है अगर ये महासरा चंद टाइम और जारी रहा सब कुछ इसके लिए आसान हो जाएगा। निकोला कहता है तुम क्या समझते हो मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा होगा, सालों से मेरा सोना जागना यही सोचना है। एक महासरे को कामयाब या नाकाम बनाने वाली चीज क्या है जानते हो? कहता अगर तुम्हारे लोग भूखे रह गए तो तुम कभी कामयाब नहीं होगे, इसलिए हमारे अनाज गोदाम में भरे पड़े हैं, लेकिन अगर लोगों में कोई बीमारी फूट पड़े तो? रोमानोस कहता है तो कुछ भी नहीं रहेगा। निकोला कहता है ठीक कहा रोमानोस, इसलिए हमारे पास काफी मिकदार में ग़िज़ा मौजूद है उस्मान से लड़ने के लिए। फिर कोता बारूद में आग लगाते हुए कहता है आग आ रही है। शामिल और तौरान आग लगाते हुए बारूद को महल में फेंकते हैं। गुंदूज कहता है हम सुबह से वार कर रहे हैं, सुबह से अब तक रात छा गई है
है और गोले बरस रहे हैं इन पर। तुर्गुत कहता है रुके बिना गोले बरस रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी सुराख नहीं निकाल सके। उस्मान कहता है हमने बहुत से नामुमकिन कामों को अल्लाह की मदद से मुमकिन में बदल दिया। सब्र और साबित कदमी तुर्गुत भाई, इंशाल्लाह ऐना गोल की दीवारों में भी सुराख करेंगे। वापसी मुमकिन नहीं है हमारी, इंशाल्लाह ऐना गोल तुर्कों की मिल्कियत होगा। बारकन कहता है आप सही कह रहे हैं उस्मान साहब, हम आपकी लेरी से वाकिफ हैं। फसील जल्द खुल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे? हम यहाँ दुश्मनों का निशाना बन सकते हैं। सरदार कहता है बारकन भाई ठीक कह रहे हैं, महासरा महीनों तक चल सकता है। अगर शहंशाह ने मदद भेजी तो ऐना गोल में खाने पीने की अशिया भी काफी मिकदार में मौजूद हैं, वो लोग महासरा बर्दाश्त कर लेंगे। अगर वक्त जाया हुआ तो मंगोल भी हम पर हमला कर सकते हैं। उस्मान कहता है जहाद में आने से पहले यकीन होना चाहिए कि, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं कि मैं आपको यकीन दिला सकूं कि, इसीलिए मैं किसी को रुकने या वापस जाने का नहीं कहूँगा। लेकिन अगर किसी के दिल में कोई शक है तो मेरे साथ ना आए। बारकन कहता है नहीं उस्मान भाई, हमारे दिलों में कोई शक नहीं और ना ही कोई डर है। उस्मान कहता है हम यहाँ ऐना गोल लेने आए हैं एक अजीम रियासत बनाने के लिए, खून बहाने और शहादत का शरबत पीने आए हैं। और जिस तरह हमने कुंदूज साहब के साथ फैसला कर लिया है, मंजी के फसीलों के करीब ले जाएंगे और कुंदूज भाई गोले फेंकना जारी रखेंगे और तुर्कों के गजब से वार करेंगे, अल्लाह की मदद से वार करेंगे। ऐना गोल को हमारी सरजमीन बनाने के लिए जरूर सुराख खुल जाएंगे। लेकिन ये नहीं भूलना कि ढाल को मात देने वाली शय तीर की ताकत नहीं होती, बल्कि इसकी तादाद होती है। कौनूर कहता है सुराख खुलने के बाद पहले दस्ते से मैं जाऊंगा। उस्मान कहता है पहले दस्ते की लड़ाई सख्त होगी, इसीलिए इनके पहले दस्ते को तुम मात दोगे। बुरहान कहता है उस्मान साहब कौनूर के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। उस्मान कहता है बिल्कुल तुम्हें इजाजत है। बुरहान कहता है ऐना गोल के फसीलों पर तुर्कों का झंडा लहराएंगे। उस्मान कहता है ऐना गोल भेड़िए के पंजों में आ चुका है, जिससे निकलना नामुमकिन है। या तो रियासत कायम होगी या हमारी लाशों को गीतों ने खाना है। सिपाही गोले फेंकते हैं मुसलसल। निकोला चिल्लाता है कि सिपाहियों अपनी तलवारों को खून से रंगे बिना जमीन पर ना गिरना। अगर अपनी तलवार को खून से रंगे बिना कोई गिर गया तो मैं इसकी तलवार को इसके खून से रंग दूंगा। अपनी जगहों पर खड़े होकर दिफा करो। उस्मान कहता है हम बिला वजह जिद नहीं करते, यकीनन हम आपकी हर बात पर तवज्जो देते और कबूल करते हैं। अगर महासरा तवील होता है तो हम इकदाम उठाएंगे। बारकन पूछता है वो इकदाम क्या हैं? उस्मान कहता है हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी ऐना गोल की हिमायत में नहीं आएगा। सरदार रहमान से कहता है कि जो एज़निक से सामान आ रहा है उसे आप अपने सिपाहियों के साथ लूटेंगे, को हिसार के इलाके में छुपाएंगे। सरदार कहता है ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा जो जालिम अपनी इमदाद के लिए भागेगा वो अपनी मौत की तरफ भागेगा। वो दूसरे सरदार से कहता है कि आप अपने सिपाही लेकर अक्सीर के इलाके में जाएंगे। सरदार कहता है जब तक ऐना गोल मुसलमानों का नहीं हो जाता हम किसी को करीब नहीं आने देंगे, चाहे वो हमारी जान ही क्यों ना ले ले। उस्मान बारकन से कहता है कि अपने सबसे मजबूत सिपाहियों को चुनो और 2 दस्तों में तकसीम हो जाओ। आप और आपके सिपाही अंदरूस में अपने आप को मजबूत करेंगे। बारकन अपने खेमे में बैठा होता है, वहाँ हसामुद्दीन आता है। बारकन हसामुद्दीन से कहता है कि निकोला को ये खबर भिजवा दो। हसामुद्दीन कहता है किला घेर लिया गया है। बारकन कहता है क्या तुम्हें खबर भिजवाने के लिए किले जाना पड़ेगा हसामुद्दीन? तो सेब के दरख्त के किनारे से 20 कदम चलो, जब तुम सही जगह पहुंचो ये तो महल के आगाज को देखोगे, फिर तुम तीर को उस जगह मारोगे जहाँ तुमको एक दूसरे के झंडे नजर आए। वहाँ एक सिपाही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बारकन हसामुद्दीन को तीर और कमान देता है, जल्दी जाओ। नक्शे को दिखाते हुए रोमानोस कहता है मेरे आदमी यहाँ घात लगाए बैठे हैं, जब धमाके शुरू होंगे तो हम इनके हेडक्वार्टर को घेर लेंगे। निकोला कहता है वो दरमियान में मसले जाएंगे कि जैसे कि मक्खी। सिपाही आता है और बताता है कि हमें इनमें से मालूमात मिली है। रोमानोस कहता है कि लगता है कि तुम्हारा जासूस कोई अच्छी खबर लेके आया है। निकोला कहता है अच्छी खबर है। उस्मान ने दूसरे कबाइल से आने वालों को मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम कर दिया है इलाकों की हिफाजत के लिए। दीदी के इसने अपने चंद आदमियों को इनके साथ भेजा है। इसका मतलब है कि रोमानोस उस्मान का हेड क्वार्टर अब मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के बगैर है। रोमानोस कहता है मैं आदमियों को अपने लेकर जल्दी आगे बढ़ूंगा। जैसे ही मैं इनसे मिलूंगा हम उस्मान के हेड क्वार्टर पर हमला करेंगे। जैसे ही हेड क्वार्टर गिर जाएगा मैं तमाम मंजी के तबाह कर दूंगा। निकोला कहता है उस्मान मंजीकों के बगैर कुछ नहीं कर सकता और मजीद ये कि इसके पास फौज का हेड क्वार्टर नहीं होगा जिसमें ये तैनात करेगा। निकोला और रोमानोस से कहता है जब तुम अपने आदमियों को लेकर इस पे हमला करोगे तो मैं भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाऊंगा। रोमानोस कहता है जबकि उस्मान और उसके आदमी किले की दीवारों की तरफ पहुँच गए हैं, मेरे लिए पोशीदा वादी कारसो तक पहुँचना मुश्किल होगा। निकोला कहता है कुछ बहादुर सिपाही अपने साथ ले जाओ और अभी
निकलो। रोमानोस कहता है मुझे बस 3 सिपाही दो बहादुर, मैं इनके 3000 का लश्कर मिटा दूंगा। तैमूर कहता है उन्होंने बेलाजिक में हमारे वकार को पामाल किया है, अब आप इनके रास्ते काटने जाएंगे, मुझे आपके साथ जाने की इजाजत। इसके शाना बशाना लड़ना और मरना मेरे लिए एजाज की बात होगी। गुंदुज अपने खेमे में नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद वो दुआ मांगता है, आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, जमीन और आसमान को बनाने वाले, मैं दुश्मनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह हर चीज तेरे हाथ में है। अल्लाह मैं अपने बेटे आक तैमूर और भाई उस्मान और इसके मासूम बेटों को आपके सुपुर्द करता हूँ और तमाम तुर्कमान आपकी हिफाजत में है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं तेरी पनाह में देता हूँ, शैतान और दुश्मनों की शर से इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे आक तैमूर को अपने लिए कोशिश करने वालों में शामिल कर, इसकी हमेशा दाएं तरफ रहनुमाई फरमा, हमेशा मदद फरमा। या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू इसे उन बंदों में से बना जिनसे तू राजी है। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो का पार्ट 2 देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।